Assalamualaikum. My name is Sarvet Mujahid Fatai. Today I am going to teach you how to write TS and CS in paragraph writing. Before our lecture, I would like to request you to subscribe my YouTube channel Let's Learn. So, starting from the paragraph writing. What is a paragraph? It is most important to understand how to write a paragraph. So, here I have write the question how to write TS and CS in paragraph writing. First of all, we should understand what is a paragraph. Paragraph is a combination of two words, para and graph. Para means line and graph means pictorial representation or observation or imagination. Means we have to write a paragraph according to line. In the line manner, we have to make an indent and escape. So before writing our paragraph, we should understand the background, how to write a paragraph according to line and pictorial representation. Now what is a pictorial representation or observation? It is your personal observation. We are going to look at different things and different issues in our life, different problems we are facing. So we have to make observation of different things. So whenever we have observation, systematically we can write a good paragraph. So this is to represent that paragraph is a combination of two words. Para means line and graph means pictorial representation. You have to write paragraph according to the line and according to your pictorial representation or your observation of different things. We are looking in our atmosphere and environment. So now we are going to write how to write a TS and CS. Now we are going to learn how to make TS and CS. TS stands for topic sentence and CS stands for concluding sentence. TS stands for concluding sentence. Means to sum up, to conclude some composition, to sum up in a nutshell. So here the topic of responsibilities of parents. What are the responsibilities of parents? We are going to write a paragraph on this topic, responsibilities of parents. So first of all, we have to make TS of this paragraph. So what is the importance of TS? A TS is a beginning, a very beautiful expression of a paragraph. That we are going to start our paragraph with TS. It means we have to beautify our paragraph with TS. So in TS, I have there are many responsibilities of parents. To educate children is one of the responsibilities of parents. अपने बच्चों को तालीम देना वालिदैन की responsibilities में आती है, जिम्मेदारी में आती है. उसके बाद हम कुछ lines छोड़ेंगे. तो पहले तो हम जो TS बना रहे हैं, इसका मीन्स ये topic sentence, ये एक start है paragraph का. So we have started this paragraph according to TS. शुरुआत की है हमने ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन से, अच्छे अल्फाजों में. उसके बाद हमें कुछ लाइनें छोड़नी है क्योंकि पैराग्राफ जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस पर डिपेंडेंट होता है. उसके बाद अब जब TS पूरी करेंगे कुछ लाइनें छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारी बिगनिंग है और जो CS है वो हमारी एंडिंग है. बिगनिंग, आपको कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसकी बिगनिंग TS से करेंगे और उसकी एंड CS से करेंगे. सो after some lines we have to write the CS of this paragraph. Now what is CS? As I told you, the concluding sentence. We are going to sum up our paragraph. So we have to write some different words for CS. For example, I have write hence. So there are different concluding words, just like as a result. You can write as a result. You can write as a consequence. You can write in a tailpiece. You can write to cut long story short. So there are different words and phrasal verbs and different types of composition. You can sum up your concluding sentence according to these particular words. So what is the CS of this TS? We are going to sum up our paragraph in CS. Hence, responsible father and mother. The parents are the father and mother are the parents. So bestowed means blessing, are giving their offsprings
the children or offspring. I have converted these words and using the thesaurus and other words. I am also going to use some etymological words vocabulary. So with the ornament of education, I have to beautify my language with these words. Ornament of education. Ornament, we are wearing different. हम जो ज्वेलरी पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज अ फ्रेज करके मैंने इसको इस्तेमाल किया. So this is the TS of the topic and this is the CS of our paragraph. So we have to convert the TS and CS and writing the whole paragraph according to systematically. हम एक और बड़ी टॉपिक लेते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी हमें TS और CS कैसी बनानी है. मैंने टॉपिक ली है पॉवर्टी इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में गुर्बत, ये एक इशू है. इट इज़ एन इशू. So in issue there are three things. We have to cover three things: causes, impacts and remedies. Causes उसके असबाब क्या हैं, impacts उसके असरात क्या हैं, effects जिसे हम कहते हैं, remedies यानी solutions, उसके solutions कौन से. पहले आते हैं हम causes पर. What are the causes of poverty in Pakistan? As I have write, corruption, lack of industries, unemployment, illiteracy, feudalism, overpopulation, political uncertainty. There are many causes, but मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि एक करप्शन उसका काज है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होगी, सनतकारी नहीं होगी तो पॉवर्टी पैदा होगी, गुर्बत पैदा होगी. अनएम्प्लॉयमेंट में रोजगार नहीं होगा तो भी गुर्बत पैदा होगी. इलिटरेसी, जहालत होगी, फिर भी पॉवर्टी पैदा होगी. फेडरलिज्म जो वटेराशाही है, हमारे जो फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ये चीज़ एग्जिट करती है. ओवर पॉपुलेशन पर हमारा कंट्रोल नहीं है. आप देख रहे हैं कितनी ओवर पॉपुलेशन हो गई है. उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी एक काज है पॉवर्टी इन पाकिस्तान का. नाउ इम्पैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, कि उसके इफेक्ट्स, असरात क्या हैं. जैसे मैंने कुछ लिखे हुए हैं, क्राइम्स, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं इसके. बेगरी, लोग भीख मांगना शुरू करते हैं. ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं. क्राइम्स होते हैं. ये सारे इम्पैक्ट्स हैं. इसके रेमेडीज़ क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, कुछ मैंने लिखी हुई है. प्रोमोट एजुकेशन, फ्री एंड फेयर एजुकेशन होनी चाहिए. इंश्योर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार दें लोगों को. स्टॉप करप्शन को रोक दें. इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रीज़, नई इंडस्ट्रीज़ लगाएं, मुख्तलिफ शहरों में लगाएं. कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें. तो ये जो भी इशू होते हैं उसमें हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं. अब इसकी TS और CS कैसी बनानी है. हमने टॉपिक ली हुआ है पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इसकी हम TS और CS बनाएंगे. सो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक की TS बनाने में. जैसे कि हमें पहले अब कासेस पर लिखना है. मैंने एक पहला कास लिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोमोट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान. ये एक TS बन गया. TS क्या है, मैं फिर रिपीट करता हूँ. किसी भी पैराग्राफ की हम बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं तो TS से करते हैं और उसकी एंडिंग करते हैं तो वो CS से करते हैं. तो हम शुरुआत कर रहे हैं TS से. तो पहला काज मैंने लिया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. अनएम्प्लॉयमेंट प्रोमोट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान. बेरोजगारी ही हथी देती है, बढ़ाती है गुर्बत को पाकिस्तान में. उसकी अब हमें 3-4 लाइनें छोड़नी है क्योंकि हमें सेंटेंस और भी बनाने हैं, इसको एक्सपांड करना है. CS क्या बनती है इसकी, डेस्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ जॉबलेसनेस. डेस्टिट्यूशन इज अदर नेम ऑफ अदर वर्ड ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी का ये अदर नेम है जिसको हम थेसारस कहते हैं. अगर आप थेसारस पढ़ेंगे तो पॉवर्टी के डिफरेंट अदर वर्ड्स हैं. तो मैंने क्या है कि लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए, लैंग्वेज को वैरायटी देने के लिए मैंने एक अदर वर्ड यूज़ किया पॉवर्टी का, ताकि हमारी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए. इज़ अ रिजल्ट ऑफ जॉबलेसनेस. देखें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज कर दिया जॉबलेसनेस, इसका अदर वर्ड यूज़ किया. अगर मैं फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट लाता या पॉवर्टी डेस्टिट्यूशन की जगह पॉवर्टी को यूज़ करता तो ये हो जाती रिडंडेंसी, एरर, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. ये एक गलती हो जाती है हमारी, एरर हो जाती है. इसीलिए हम एरर को अवॉइड करने के लिए हमने अदर वर्ड्स यूज़ किया. तो ये इसकी बन गई TS, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोमोट्स पॉवर्टी इन पाकिस्तान. और इसकी CS बनेगी डेस्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ जॉबलेसनेस. अब हम आते हैं इसके इम्पैक्ट की तरफ. एक एग्जांपल मैं आपको इम्पैक्ट का देता हूँ जी. अब आते हैं हम इम्पैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी. काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स मैंने लिखे थे, हम एक इम्पैक्ट पर बात करेंगे. अब इसका TS बना रहे हैं. TS stands for topic sentence. Poverty generates harsh attitude among poor. ये जो गरीब लोग हैं उनमें harsh attitude पैदा करती है गुर्बत. फॉर एग्जाम्पल हमें गुस्सा आता है तो
गुस्सा पैदा करती है गुर्बत। काफ़ी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि बंदा जो है वो गुस्से में रहता है, क्योंकि जो पॉवर्टी है उसको ऐसे कर देती है। तो ये पॉवर्टी का एक इम्पैक्ट है। अब हमें कुछ लाइनें छोड़नी है। टीएस के बाद अब आते हैं हम सीएस की तरफ, मीन्स कंक्लूडिंग सेंटेंस। एंग्री बिहेवियर इज एन आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। अब देखें मैंने कौन सी चीज़ें तब्दील की हुई हैं। हार्श एटीट्यूड को कन्वर्ट कर दिया एंग्री बिहेवियर में, एज अदर वर्ड्स। उसके बाद जो मैंने जनरेट्स लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसको चेंज कर दिया आउटकम में। उसके बाद जो मैंने किया पॉवर्टी का अदर वर्ड यूज़ किया स्कार्सिटी। जैसे कि मैंने बताया, आप थेसारस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अदर वर्ड्स कौन से होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं। मैंने एक और लेक्चर दिया था वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। वो लेक्चर भी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोकैबुलरी को कैसे एक्सपांड करना है, थेसारस कैसे यूज़ करनी है। तो ये हो गए भाई टीएस और सीएस। इसका टीएस क्या हो गया, ये एक इम्पैक्ट है, पॉवर्टी जनरेट्स हार्श एटीट्यूड अमंग पुअर। उसके बाद हमें कुछ लाइनें छोड़नी है, उसके बाद सीएस लिखना है। लाइनें छोड़ने का मतलब इसमें भी हमें कुछ कंपोजिशन देनी है, कुछ लिखना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ। टीएस जो है वो बिगिनिंग में हम लिखते हैं और सीएस एंड में लिखते हैं। तो एंग्री बिहेवियर एज एन आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। अब आते हैं हम रेमेडी की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम आते हैं इस लेक्चर के फाइनल जो टचअप है इस पर आते हैं। तो पहले हमने काजेस सीखे, उसके बाद उसके जो इम्पैक्ट है उसके टीएस या सीएस कैसे बनाने हैं। अब हम रेमेडीज पर आएंगे, सॉल्यूशन पर आएंगे, इसका हल क्या है, इस मसले का हल क्या है। पहले हम टीएस बनाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी रिजॉल्व बाय ब्रिंगिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज पे लाने से गुर्बत को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, उसको हल किया जा सकता है। उसके बाद हम इसके सीएस पर आएंगे। सीएस कैसे बनेगा, दे आर इंडस्ट्रीज दैट कैन इराडिकेट पेन्यूरी इन द कंट्री। ये इंडस्ट्री हैं, सनतकारी हैं जो गुर्बत को ख़त्म कर सकती हैं मुल्क में से। अभी देखें इसमें एक और चीज़ हम नोट करेंगे कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी जो एक वर्ड है उसके जगह मैंने पेन्यूरिलर्स यूज़ किया है, इसके अदर वर्ड है। उसके बाद मैंने जो फॉर एग्जांपल रिवोल्ट है उसको मैंने फॉर एग्जांपल इराडिकेट एज उसको यूज़ करके पेन्यूरी को ख़त्म करने का अदर वर्ड यूज़ किया है। और फॉर एग्जांपल मैंने मुल्क का पाकिस्तान का नाम चल रहा था, पाकिस्तान में गुर्बत कैसी है, उस हिसाब से मैंने कंट्री यूज़ लास्ट में किया। तो ये इसका बन गया टीएस और सीएस। तो द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी रिजॉल्व बाय ब्रिंगिंग इंडस्ट्रीज एंड इसका सीएस बनेगा दे आर इंडस्ट्रीज दैट कैन इराडिकेट पेन्यूरी इन द कंट्री। तो ये कुछ चीज़ें थी टीएस और सीएस जिससे हम पैराग्राफ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। होपफुली कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। लेट्स लर्न। अपना ख्याल करें, कोरोना वायरस में मास्क पहनें, बाहर कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग SOPs पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच।